Imagine that you lied about another brother in the church. कल्पना करके देखो कि शायद आपने कलीसिया में आने वाले एक दूसरे भाई के बारे में झूठ बोला. You accused him of doing something which he did not do. आपने उनके ऊपर गलत दोष लगाया. Now you are expecting that this person will one day take his revenge. और आप ये अपेक्षा करते हो कि एक दिन ये भाई आपसे बदला लेगा. But instead of that, this person comes and helps you in your time of need. लेकिन उसके बदले ये भाई आपकी जरूरत के समय में आकर आपकी मदद करता है. For example, someone fell sick in your family and was admitted to the hospital. उदाहरण के रूप में आपके कोई भी कुटुंबी जन बीमार था और वो अस्पताल में दाखिल था. This person whom you hurt comes and prays for your family and also gives you some financial help. ये व्यक्ति जिसको आपने चोट पहुंचाया था वो आता है, आपके कुटुंब के लिए प्रार्थना करता है और आपको आर्थिक मदद भी देता है. How will you feel about how you behaved to this person in the past? आपने पहले इस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार किया उसके बारे में सोचकर आपको कैसा लगेगा? You will feel guilty for your sin. आपको आपके ही पाप के दोष का अनुभव होने लगेगा. You will confess your sin to God and ask Him for forgiveness in Jesus' name. आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे और यीशु मसीह के नाम से मांगोगे and God will forgive you और परमेश्वर आपको क्षमा भी करेगा. You will say sorry to this person and ask him for his forgiveness. आप इस व्यक्ति से क्षमा मांगोगे और वो व्यक्ति आपको क्षमा करेगा. Scripture teaches us that love leads people to repentance. वचन हमें सिखाता है कि प्रेम लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाता है. And repentance leads to forgiveness of sins. और पश्चाताप के कारण क्षमा मिलती है. Therefore, Paul says that love should flow through every relationship in the church. उसलिए पौलुस कहता है कि कलीसिया के हर रिश्ते में प्रेम बहना चाहिए. Let us read today's passage from Ephesians chapter 5 verse 1 and 2. आइए आज के खंड को हम पढ़ें जो एफेसियों के 5वें अध्याय और उसके पहले 2 आयतों से. It says, therefore be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. My first point today is let us imitate the Father. आज का जो पहला बिंदु है वो ये है, आए हम पिता का अनुकरण करें. In verse 1, Paul tells the Ephesian believers, be imitators of God as beloved children. पहले आयत में पौलुस एफेसियों के विश्वासियों से कहता है कि प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. Paul is telling the believers in Ephesus that God has loved them. पौलुस जो है एफेसुस के विश्वासियों से कहता है परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया है. That is why he calls them beloved children. उसीलिए वो उनको प्रिय बालक कहता है. प्रिय बालक, परमेश्वर के प्रिय बालक, the beloved of God. And they should now imitate God their Father. अब उनको परमेश्वर पिता का अनुकरण करना है. They should also love the way their Father has loved them.
उनको भी उसी तरह प्रेम करना चाहिए जैसे पिता ने उनसे प्रेम किया है. Interestingly, like every other human being, these Ephesians who have received the love of God were once worthy to receive only the wrath of God. दिलचस्प बात यह है कि हर एक मनुष्य की तरह ऐसा एक समय था जब इफिसुस के ये लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पाया था, सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे. That is why Paul says we were children of wrath. उसीलिए पौलुस कहता है हम क्रोध के संतान थे. I want you to read Ephesians chapter 2 and verse 3. इफिसियों का दूसरा अध्याय और तीसरा आयत हम पढ़ेंगे. Ephesians 2 verse 3. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. There was a time when Paul and the Ephesian believers used to live in bondage to the lusts and desires of their flesh. एक ऐसा समय था जब पौलुस और एफेसस के विश्वासी अपने शरीर के लालसाओं और इच्छाओं के दासत्व में रहते थे. They were sinful people, ये पापमय लोग थे, and they deserved only the wrath of God, और ये लोग सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे. That is why Paul says we were by nature children of wrath. उसलिए पौलुस कहता है हम स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. So what does God do to them? परमेश्वर उनसे क्या करता है? Does he pour out his wrath on them? क्या परमेश्वर अपना क्रोध इनके ऊपर उंडेलता है? No. Instead of pouring out his wrath on them, God loved them. उनके ऊपर क्रोध उंडेलने के बदले परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. I want you to read the very next verses, verse 4 to 7. मैं चाहता हूं कि अगले आयतों को पढ़े, चौथे आयत से सातवें आयत. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. कहता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. Verse 4 says that God loved them with his great love. चौथा आयत कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम से उनसे प्रेम किया. God showed that great love through his son Jesus Christ. परमेश्वर ने वो बड़ा प्रेम अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया था. He sent his only beloved son to die on the cross for their sins. उसने उनके पापों के लिए मरने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा. And God vindicated the sacrifice of Jesus by raising him from the dead. और परमेश्वर ने उसके मृत्यु को
सही ठहराया। कैसे? उसको मृत्यु से जिलाकर। Then on the basis of Jesus' life, death and resurrection, God gave them a new spiritual life. और यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के आधार पर परमेश्वर ने उनको नया आत्मिक जीवन दिया। Earlier they were spiritually dead. God gave them a new spiritual life. पहले वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, परमेश्वर ने उनको एक नया आत्मिक जीवन दिया। Such great love from God opened their spiritual eyes. परमेश्वर की ओर से यह बड़ा प्रेम उनकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। They came to know about their own sinful condition, repented and believed in Jesus Christ for salvation. उन्होंने अपने पापमय परिस्थिति को जाना, पश्चाताप किया और उद्धार के लिए यीशु मसीह पर विश्वास किया। Through faith they became united to Christ. विश्वास के द्वारा मसीह में हो गए। And because of their union with Christ, they also became children of God. और मसीह यीशु के में हो जाने के कारण वो भी परमेश्वर के संतान हो गए। Therefore, God bestowed all His blessings upon them. इसलिए परमेश्वर ने सारे आशीषों को उनके ऊपर उंडेला है। In this life, spiritually, He has raised them and seated them with Christ in the heavenly places. इस जीवन में आत्मिक रीति से मसीह यीशु के साथ उनको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, so that they might no more be in bondage, but with Christ rule over sin and Satan and all his evil spiritual forces. ताकि वो इस दासत्व में बने ना रहे, पाप के दासत्व में, बल्कि मसीह के साथ पाप और शैतान और सारी दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर राज्य कर पाए। And in eternity, He has promised to give them surpassing riches of His grace. और इसने ये प्रतिज्ञा की उनसे कि अनंतता में वे उन्हें अनुग्रह का वो असीम धन दर्शाएगा। Not just spiritual blessings, but at that time they will also experience every spiritual blessings. और सिर्फ आत्मिक आशीषें ही नहीं, बल्कि अनंतता में वो उनको सारी शारीरिक आशीषें भी देगा। So what has happened here? तो यहां पर क्या हुआ है? To those who were the children of wrath, God showed love. जो लोग पहले क्रोध के संतान थे, उनको परमेश्वर ने प्रेम दर्शाया है। When they experienced this love, they repented and trusted in Christ. उन्होंने जब इस प्रेम को अनुभव किया, उन्होंने पश्चाताप किया, मसीह यीशु पर विश्वास किया। You know, if you read through the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, God calls only one person His beloved Son, Jesus Christ. आप सुसमाचारों को पढ़ोगे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, आप देखोगे कि वहां पर प्रिय पुत्र एक ही व्यक्ति को परमेश्वर बताता है, यीशु मसीह। But when sinners become united to Christ through faith, they also become the beloved children of God. लेकिन जब एक पापी मनुष्य विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में हो जाता है, तो वो भी परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन जाता है, प्रिय पुत्री बन जाती है, प्रिय संतान बन जाते हैं। I want you to read the Gospel of John, chapter 1 and verse 12 and 13. मैं चाहता हूं कि यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 12वें और 13वें आयत को आप एक बार पढ़िए। John chapter 1 verse 12 and 13. But to all who did receive Him, who received Jesus, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. परंतु जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So those who have received Jesus, believed in his name, have been given the right to become the children of God. जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस पर विश्वास किया है, उनको परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया है। Therefore, Paul tells the Ephesian believers that now, as beloved children, you should now imitate God the Father. इसलिए पौलुस एफेसियस के विश्वासियों से कहता है, अब तुम प्रिय बालक बन चुके हो परमेश्वर के, इसलिए तुम भी अब परमेश्वर पिता का अनुकरण करो। When a beloved brother or sister in Christ sins against you, you should not show wrath against them, but you must show love to them. वो कह रहा है उनसे कि अगर कोई मसीही भाई या बहन तुम्हारे विरुद्ध में पाप करे, तो तुम भी अभी उनसे क्रोध मत करना, बल्कि क्या करना, तुम उनसे प्रेम करना। And when they show love, their sinning brothers and sisters will come to repentance and seek forgiveness. और जब आप मसीही भाइयों और बहनों को अपने प्रेम को दर्शाओगे, तो वो अपने पापों से मुंह फेरेंगे और क्षमा मांगेंगे। This has been Paul's whole argument from Ephesians chapter 4 verse 31. और यही पौलुस का तर्क रहा है एफेसियों के 4 अध्याय 31 आयत है। सो आई वांट यू टू नाउ रीड दिस वर्स इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को उसके संदर्भ में पढ़ें। लेट अस रीड फ्रॉम एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 31 टू आवर वर्स चैप्टर 5 वर्स 1। आइए हम एफेसियों के 4 अध्याय 31 आयत से पढ़े और 5वें अध्याय के पहले आयत जो हमारा आयत है वहां तक पढ़े। Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Rather, what to do? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Therefore, be imitators of God as beloved children. कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Paul is talking about how we should treat other beloved children of God when they sin against us. पौलुस यहां पर हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर के दूसरे बालकों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब वे हमारे विरुद्ध पाप करें तो हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए। When we were sinners, the Father loved us by sending his son Jesus for us. जब हमने पाप किया, परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। And having known that love, we repented and trusted in Jesus. और उस प्रेम को जानकर हमने पश्चाताप किया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। That is why the Father has forgiven us. उसीलिए पिता ने हमें क्षमा किया है। That is how we should also behave in the household of faith. विश्वास के घराने में हमारा व्यवहार भी ऐसा ही होना चाहिए। We should love our fellow brothers and sisters who sin against us. हमारे विरोध में पाप करने वाले भाइयों और बहनों से हमें प्रेम करना चाहिए।
And our love will lead them to repentance. और हमारा प्रेम उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाएगा. And when they repent, they will find forgiveness. और जब वो पश्चाताप करेंगे तब वो क्षमा को प्राप्त कर पाएंगे. Jesus taught us this principle. यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को हमें सिखा कर दिया है. I want you to read the Gospel of Matthew chapter 5. मैं चाहता हूं कि आप मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय को पढ़ें. मत्ती का 5वां अध्याय 44वां आयत और 45वें आयत का पहला भाग, verse 44 and the first part of verse 45. मत्ती 5, 44 और 45 का पहला भाग. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे. Loving our enemies, praying for those who persecute us, shows that we are the children of the heavenly Father. बैरियों से प्रेम करके, सताने वालों के लिए प्रार्थना करके हम इस बात को दर्शाते हैं कि हम स्वर्गीय पिता के संतान हैं. That is what we have learned from the Father. हमने हमारे पिता से यही सीखा है. Read verse 45 and the second part of it. 45वें आयत के दूसरे भाग को पढ़े. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. कहता है क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है. God decides where the rays of the sun will fall each day. परमेश्वर यह निर्णय करता है कि हर दिन सूरज की किरणें कहां गिरेंगी. He could have said that I won't send sunlight to the evil. वो चाहे तो कह सकता था बुरे लोगों पर आज मैं सूर्य उदय करूंगा ही नहीं. Instead he loved them by sending sunlight on them. बल्कि उनसे प्रेम किया उनके ऊपर सूर्य उदय करवाकर. हम क्या करते? हम तो उनका बिजली का तार काट देते. नहीं, we would have cut off their electricity connection. He decides where the rains will fall. वो निर्णय करता है कि बारिश कहां गिरेगा, मेघ कहां बरसेगी. He could have said that I won't send rain on the unrighteous. वो चाहिए तो कह सकता था कि मैं अधर्मियों पर आज मैं नहीं बरसाऊंगा. Instead he loved them by sending rain on them. बल्कि उनसे प्रेम किया उनके ऊपर मेघ बरसाकर. What will we do when someone in this church sins against us? हम क्या करेंगे जब हमारा कोई भाई या बहन हमसे पाप करेगा? We will avoid them. हम उनसे दूर रहेंगे. We will not smile at them. बारिश और सूर्य उदय छोड़ो, हम तो हंसकर भी नहीं दिखाएंगे. Leave alone rain, leave alone sunlight. We won't even smile at our brothers and sisters. We will not take their calls. कॉल करेंगे तो उठाएंगे नहीं. But that is not what we have learned from the Father, isn't it? लेकिन हमने ये अपने पिता से नहीं सीखा है. Rather we must be kind to them. बल्कि हमें तो उन पर कृपालु होना है. We must be compassionate and meet their needs. हमें करुणामय होकर उनके जरूरतों को पूरा भी करना है. I want to read verse 46 and 47. मैं चाहता हूं कि आप 46वें और 47वें आयत को पढ़ो. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते?
यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इफ यू लव ओनली दोज हु लव यू, दैट इज वर्ल्डली लव. अगर आप उन्हीं से प्रेम करो जो आपसे प्रेम करते हैं, तो यह तो सांसारिक प्रेम हो गया. सब लोग ये करते हैं. बट मेनी टाइम्स क्रिश्चियंस ऑल्सो शो वर्ल्डली लव टू ईच अदर. लेकिन अक्सर मसीही लोग एक दूसरे से ये सांसारिक प्रेम ही रखते हैं. यू लव मी, आई लव यू बैक. तू मुझसे प्रेम करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा. यू हर्ट मी, आई हर्ट यू बैक. तू मुझे दुख पहुंचाएगा, मैं तुझे दुख दूंगा. बट दैट इज नॉट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द फादर. हमने हमारे पिता से ये नहीं सीखा है. दैट इज व्हाई जीसस सेज इन वर्स 48, यू देयरफॉर must be perfect as your heavenly father is perfect. इसलिए यीशु मसीह 48वें आयत में कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है. When we love like our father, it will lead our Christian brothers and sisters to repentance. जब हम पिता की तरह प्रेम करेंगे तो हमारे मसीह भाई और बहन जब जो पाप करते हैं वो पश्चाताप की ओर जाएंगे. They will experience forgiveness of sins. वो अपने पापों का क्षमा प्राप्त करेंगे. When we do not love like our father, जब हम अपने पिता के तरह हम प्रेम नहीं करते, our churches will be filled with bitterness, wrath, anger, clamor and slander. हमारी कलीसियाएं कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा से भर जाएंगे. Therefore let us imitate the Father. इसलिए हम अपने पिता का अनुकरण करें. My second point, मेरा दूसरा जो आज का पॉइंट है, by imitating his son. पुत्र का अनुकरण करने के द्वारा. We must imitate the Father by imitating the Son. पिता का अनुकरण कैसे करते हैं? पुत्र का अनुकरण करके. Paul then says in verse 2, पौलुस फिर दूसरे आयत में कहता है, and walk in love, just as Christ also loved you, and gave himself up for us as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. हिंदी के अनुवाद में थोड़ा अलग होगा जो आपके बाइबल में है, लेकिन इस तरह है. पौलुस कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को भेंट कर दिया और सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया. फॉर पॉल, इमिटेटिंग गॉड मीन्स वॉकिंग इन लव. पौलुस के लिए यह परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब है प्रेम में चलना. We must live a life of love. हमें प्रेम का एक जीवन जीना है. And that is what we have understood so far. और उसी बात को हमने अभी तक समझा है. Paul not only tells us to walk in love, but he now offers us a great role model for walking in love. पौलुस सिर्फ ये नहीं कहता है कि प्रेम में चलो, बल्कि अब प्रेम में चलने के लिए हमारे सामने एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है. Jesus Christ, यीशु मसीह. How did Jesus Christ love us? यीशु मसीह ने हमसे कैसे प्रेम किया? The first thing that Paul says about Christ's love is that he gave himself for us an offering. पौलुस कहता है कि उसने हमारे लिए अपने आप को भेंट कर दिया. द वर्ड ऑफरिंग, वहां पे जो शब्द है भेंट, इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द सैक्रिफाइस विच वॉज ऑफर्ड बाय द ओल्ड टेस्टामेंट पीपल फॉर देयर सिंस. ये वो शब्द है जो बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराने नियम के लोग देते थे अपने पापों के लिए. But such offerings could not deal with all their sins. लेकिन ये जो भेंट वो लोग करते थे वो उनके पापों का समाधान नहीं था.
Therefore they had to bring these offerings again and year after year. उसलिए उनको इन भेंटों को बार बार साल दर साल लाते रहना पड़ता था, क्योंकि भेंट कभी भी आपके सारे पापों का समाधान नहीं कर सकता है. Offerings could never take care of all your sins. I want you to read Hebrews chapter 10 verse 1 to 4. मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों के 10वें अध्याय और उसके पहले 4 आयत को पढ़ें. Hebrews chapter 10 verse 1 to 4. For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Otherwise would they not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. But in these sacrifices there is a reminder of sins every year. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार की बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता. इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. The offering of animals as a sacrifice was not God's ultimate solution for the sins of his people. बलिदान के रूप में जानवरों का भेंट परमेश्वर का अंतिम समाधान नहीं था उसके लोगों के पाप के लिए. Rather, God sent his son into the world and ordained that his son would become the offering for our sins. बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और यह ठहराया कि उसका पुत्र उनके पापों के लिए भेंट बनेगा. This was God's will and his son Jesus came to fulfill that will. यह परमेश्वर की इच्छा थी और उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसका पुत्र इस दुनिया में आया था. To make this point, the author of Hebrews quotes from Psalm 40. इस बात को, इस विषय को हमारे सामने रखने के लिए इब्रानियों का लेखक भजन 40 से उदाहरण देता है. And he says that these were Jesus' words when he came into the world. और कहता है यही यीशु मसीह के शब्द थे जब वो दुनिया में आया था. Let us read that in verse 5 to 7. हम उसको 5वें आयत से 7वें आयत में पढ़ेंगे. Consequently, when Christ came into the world, he said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही. यीशु मसीह कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं. पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं. You know, according to the will of God, Jesus offered his own body as an offering for our sins. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने ही देह को एक भेंट के रूप में प्रस्तुत किया. And this is written very clearly in verse 10 and 14. और इसको स्पष्ट रूप से 10वें और 14वें आयत में लिखा है. Read verse 10. 10वें आयत को पढ़े. And by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा
पवित्र किए गए। सो बाय द ऑफरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट वी हैव बीन सैंक्टिफाइड। यीशु मसीह के देह को भेंट की तरह चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है। रीड वर्स 14, 14वें आयत को पढ़े। फॉर बाय अ सिंगल ऑफरिंग ही हैज परफेक्टेड फॉर ऑल टाइम दोज हु आर बीइंग सैंक्टिफाइड। कहता है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, एक ही भेंट के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। We have known the Father's love through the Son. हमने पर पिता के प्रेम को पुत्र के द्वारा जाना है। I want you to read 1 Peter chapter 2. मैं चाहता हूं पहला पत्रस 2 अध्याय पढ़े 23 और 24. 1 Peter chapter 2 verse 23 and 24. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। लाइक द फादर, द सन ऑल्सो डज नॉट डू टिट फॉर टैट। पिता की तरह ही पुत्र भी जैसी की तैसी नहीं करता है। When he was reviled, he did not revile in return. उसको जब गाली दिया गया तो उसने गाली वापस नहीं दिया। When he suffered, he did not utter any threats. जब उसने दुख उठाया तो किसी को धमकी नहीं दिया वापस। Instead, he bore our sins so that we might not be burdened by it. बल्कि हमारे पापों का बोझ उसने उठा लिया ताकि हमको वो बोझ उठाना ना पड़े। He took the wounds so that we might be healed. उसने मार खाया ताकि हमें चंगाई मिले। We know the love of God our Father through the life of the Son. परमेश्वर पिता के प्रेम को हम उसके पुत्र के जीवन में देखते हैं। And we can imitate the Father's love by imitating the Son. और हम उस पिता का अनुकरण कर सकते हैं उसके पुत्र का अनुकरण करने के द्वारा। If we have to love like the Father, then we must lose our life like the Son. अगर पिता की तरह हमें प्रेम करना है तो पुत्र की तरह अपने जीवन को खोना होगा। Are you ready to lose your life? क्या आप अपने जीवन को खोने के लिए तैयार हो? दूसरों के लिए, for others, for your brothers and sisters in Christ, मसीह में अपने भाइयों और बहनों के लिए क्या अपना जीवन खोने के लिए तैयार हो? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you cannot even come regularly to church? अपने मसीही भाई और बहन के लिए अपना जीवन कैसे खोओगे अगर आप लगातार कलीसिया में भी नहीं आ सकते? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you cannot give him some help in his time of need? अपने मसीही भाई और बहन के लिए अपना जीवन कैसे खोओगे अगर आप उसकी जरूरत के समय पर आप उसको थोड़ी मदद नहीं दे सकते हो? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you cannot devote a little time to serve in the church? आप अपने मसीही भाई और बहन के लिए कैसा अपना जीवन खोओगे अगर आप
कलीसिया में सेवा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय भी नहीं निकाल सकते? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you do not have the time to invite him to your home, listen to his problems and even pray with him? आप अपने मसीह भाई और बहन से कैसे उसके लिए अपना जीवन खोगे अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उसको अपने घर पर बुलाओ, उसकी समस्याओं को सुनो और आप उसके लिए प्रार्थना कर पाओ? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you cannot visit them in a hospital? आप अपने मसीह भाइयों और बहनों के लिए अपना जीवन कैसे खोओगे अगर आप उसको अस्पताल में एक बार विजिट नहीं कर सकते? How will you lose your life for your Christian brother or sister if you cannot say a few encouraging words when they are going through trouble? आप अपने मसीह भाइयों और बहनों के लिए अपना जीवन कैसे खोओगे अगर आप उसको 2-3 प्रोत्साहन के शब्द नहीं कह सकते? We begin to love like the Father when we begin to love like the Son. हम पिता की तरह प्रेम करेंगे जब हम पुत्र की तरह जिएंगे. Losing our lives for the sake of others. दूसरों के लिए अपने जीवन को खो देना है. जो अपने जीवन को खोएगा वो अपने जीवन को पाएगा. Those who lose their life will gain it. The second thing that Paul says about Christ's love is that he gave himself as a sacrifice to God for a fragrant aroma. दूसरी बात, मसीह के प्रेम के बारे में जो दूसरी बात पौलुस हमसे करता है वो ये है कि सुखदायक सुगंध के लिए उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे बलिदान कर दिया. In English, that is how it is written literally. You can look at the King James Version or NASB for that translation. So Jesus not only gave his body as an offering for our benefit, he also gave his body as a sacrifice to please God. यीशु मसीह ने अपने देह को सिर्फ एक भेंट के रूप में हमारे लिए नहीं दिया, बल्कि अपने देह को बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिया. Sacrifice is just another term for offering. बलिदान एक और शब्द है भेंट के लिए. दोनों एक ही है. I want you to read Hebrews chapter 9 and verse 26. इब्रानियों का 9वां अध्याय 26वां आयत हम एक बार पढ़े. There the word sacrifice is used instead of offering. वहां पर बलिदान शब्द इस्तेमाल हुआ है भेंट के बदले. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे. Jesus put away sins by sacrificing himself. बलिदान के रूप में अपने आप को देकर उसने पापों को हटा दिया है. But he did this in order to please his father. लेकिन वो उसने ये किया क्यों पता है? अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए. That is why Paul says this was a sacrifice to God for a fragrant aroma. उसीलिए पौलुस कहता है ये सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे एक बलिदान है. You know, when sacrifices are given, it produces an aroma that pleases God. जब बलिदान दिया जाता है वो एक ऐसे सुगंध को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर को भावता है. That is why it is called a fragrant aroma. उसलिए वहां पर कहा गया है कि ये एक सुखदायक सुगंध है. It is because it is acceptable to God. ये परमेश्वर को भाता है. He is pleased with it. वो उससे प्रसन्न होता है.
I want you to read a few verses, Romans chapter 12 and verse 1. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो के 12वें अध्याय और पहले आयत को देखें. Romans 12 verse 1. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. And then see what he says. Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Sacrifice is acceptable to God. He is pleased with it. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. बलिदान परमेश्वर को भावता है. I want you to read 1 Peter chapter 2 and verse 5. मैं चाहता हूं कि पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां आयत पढ़ें. 1 Peter chapter 2 verse 5. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Once again, sacrifices are acceptable to God. तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है या भावता है. आत्मिक बलिदान परमेश्वर को भावता है. I want you to read Philippians chapter 4 and verse 18. अब मैं चाहता हूं कि आप फिलिपियों का 4था अध्याय और 18वां आयत पढ़ें. Now here we will get some practical applications. यहां पर हम कुछ practical applications पाएंगे. फिलिपियों का 4था अध्याय 18वां आयत. Philippians chapter 4 verse 18. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है. जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं. वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है. The church in Philippi used to regularly send help to Paul, probably financial help. फिलिपी की कलीसिया निरंतर पौलुस को मदद भेजता था, शायद आर्थिक मदद, so that he can continue his ministry at various places, ताकि वो अपने अलग अलग जगहों पर अपनी सेवकाई को जारी रख पाए. Read verse 15 and 16. 15वें और 16वें आयत को पढ़िए. And you Philippians, you yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की. इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीका में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था. Now they have again sent him help. अब उन्होंने फिर से पौलुस को मदद भेजा है. And Paul calls this financial help from the Christians there a fragrant aroma and a sacrifice to God. और पौलुस उनकी ओर से आने वाले इस आर्थिक मदद को क्या कहता है? सुखदायक सुगंध, एक बलिदान बताता है परमेश्वर के सामने. The same words which are used in our verse, वही शब्द जिनका प्रयोग हमारे आयत में हुआ है. He also says God is well pleased with your sacrifice. वो कहता है कि तुम्हारे बलिदान से परमेश्वर को वो भावता है. You know, when you help somebody in need, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो,
परमेश्वर के लिए वो एक सुखदायक सुगंध है। When you आप किसी की मदद करते हो, वो उसको भावता है। When you help somebody in need, it is a fragrant offering before God. God is pleased with it. I want you to read Hebrews 13 and verse 16. मैं चाहता हूं कि हिब्रानियों का 13वां अध्याय 16वां आयत पढ़े। Hebrews 13 and verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। Doing good for others, sharing with those who are in need, these are sacrifices which Christians make to God. दूसरों के लिए भलाई करना, जरूरतमंदों को उदारता से देना, ये सब वो बलिदान है जो मसीही लोग परमेश्वर को चढ़ाते हैं। And when we do that, God is pleased. और जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। When we lose our lives for the sake of others, for the sake of our Christian brothers and sisters, people are drawn to God. जब हम दूसरों के लिए अपने जीवन को खोते हैं, नुकसान उठाते हैं, जब हम अपने भाइयों और बहनों के लिए अपने जीवन को खोते हैं, तो ये भाई और बहन परमेश्वर की और नजदीक आते हैं। Because of our ministry towards them, they repent from their sins and put their trust in Jesus Christ. जब हम हमारी सेवकाई उनके लिए करते हैं, तो वो अपने पापों से मुंह फेरते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। And such a sacrificial life is pleasing to God. और ऐसा बलिदान पूर्ण जीवन परमेश्वर को भावता है। It is a fragrant aroma for God. परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध है। The people whom you serve here on earth will not be able to give anything back to you. आप जिन लोगों की सेवा इस पृथ्वी पर करते हो, वो आपको कुछ भी लौटा कर नहीं दे पाएंगे। But be assured that God will reward you for such a sacrificial life. लेकिन आश्वस्त रहिए कि आपके बलिदान पूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। Those who are losing their life here on earth are gaining for themselves a great reward in heaven. जो लोग इस पृथ्वी पर अपने जीवन को खो रहे हैं, वो स्वर्ग में अपने लिए एक बड़ा प्रतिफल तैयार कर रहे हैं। आप आपके बैंक अकाउंट से निकालकर यहां पर देते हो, वहां पर आपका बैंक अकाउंट भर जाता है। You know, make your bank account empty to help others in this world. Your bank account up there in heaven gets filled up. I'll close by reading for you a passage that promises this great reward. मैं एक ऐसे खंड को पढ़कर खत्म करना चाहूंगा जो इस प्रतिफल के बारे में बात करता है। लूक चैप्टर 12, लूका का 12वां अध्याय 42 से 44वां आयत, वर्स 42 टू वर्स 44। Luke chapter 12 verse 42 to 44. And the Lord Jesus, Lord said, who then is a faithful and wise manager, whom his master will set over his household to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly I say to you, he will set him over all his possessions. लिखता है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए,
कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। We are like stewards who have been put in charge of other servants. हम उस भंडारी के समान हैं जिनको दूसरे नौकरों चाकरों का जिम्मा दिया हुआ है। We have a responsibility towards our fellow brothers and sisters. हमारे भाई और बहनों के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है। To love them sacrificially, बलिदान पूर्ण तरीके से उनसे प्रेम करें। To put their interest first instead of our own interest first. उनके हित को पहले रखे, ना कि हमारे हित को। That is how Jesus lived here on earth. यीशु मसीह ने ऐसे ही इस पृथ्वी पर जिया। And we must imitate him. हमें उसका अनुकरण करना है। And when he comes back, we should be found faithful in him. और जब वो वापस आए, वो हमें विश्वास योग्य पाए इस बात में। And he will reward us for how we have lived our lives here on earth. और इस पृथ्वी पर हमने जैसा हमारा जीवन जिया है, उसके लिए वो प्रतिफल देगा।